पोर्शन हम लोग 9th और 10th में फिनिश करते हैं, उससे एडवांटेज हमें ये मिलता है कि 11th में हमारे पास जो बर्डन होता है वो काफी कम हो जाता है। उससे एडवांटेज ये भी रहता है हम हर चीज को डिटेल में कर पाते हैं और डेफिनेटली हमारे रिजल्ट वगैरह में उससे बेटरमेंट आता है। धनंजय, I can see that some people were asking some queries to me. Sir, please show those slides. Because everyone was disconnected and it's a new meeting, I'll have to write those again. In 9th class, we'll start from 25th October. We'll start from 25th October until 25th December. We'll have one lecture per week of 2 hours. Everyone can note it down properly now. What we will do here is basic maths. This is useful for both medical as well as engineering aspirants. Now from 25th December onwards to 25th January, here we will have 2 lectures per week. Note that your foundation courses get over by here. Aapke foundation gets over. So now you are free and now you can accommodate 2 lectures per week. Again, 2-hour lecture, 2 hours each lecture. Here you have started with your PCM/PCB portion. After this, we give you a break. A break is given. Anyone has any query for this class 9th part? Anyone has any query? Any query? Isn't 5 lessons too? Yes. No. Please try and understand. For 9th portion, for 9th, this is done. I am moving towards 10th now. For 10th, we'll start from May. May, once a week, we keep lectures. There will be 2 lectures. Each lecture will be of 2.5 hours. And full class 10th will keep on going once a week. Usually the lectures take place on Sunday. We'll give Diwali vacations. We'll give prelims vacations also. All these vacations will be given. The course will keep on moving till your November end or first week of December. ये usually prelims की date के हिसाब से रहता है. This is class 10th. Now class 11th, the child will go as usual. As usual, जिससे बाकी बच्चे आते. The child will start from the 6th chapter, while the other students will start from the 1st chapter. Now, one gentleman has asked me, I think किसी बच्चे ने पूछा है कि sir 5 chapters in 1.5 years. See, first we have to understand that these are not 5 chapters. These are 5 out of your 25. So this is your 20% of your portion. This is 5 out of 25. In each subject there are, let's say 25. In physics there are 25 chapters. तो अगर आपने initial 5 finish कर लिया, for example पूरा mechanics finish कर दिया, तो that is 20% of your portion. Also, let me also tell you, ये जो आपका initial portion होता है, initial portion, this first 20% of the portion takes at least 40% of your time. आप क्लास 11th में भी देखेंगे जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं उनका 40% ऑफ द टाइम इनिशियल 20% पोर्शन में जाता है, बिकॉज उस वक्त उन्हें स्लो जाना होता है, उन्हें वो चीजें समझ नहीं पड़ती. सो दिस 20% ऑफ द पोर्शन इज एक्चुअली नॉट, डोंट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मेजर इट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट यू नीड. वही एफर्ट आपको इधर भी लगाना होगा, वही एफर्ट आपको उधर भी लगाना होगा. पर अगर आपने वो एफर्ट क्लास 11th में लगाया तो सोचिए आपका 30-40% पोर्शन टाइम तो आपका 20% पोर्शन फिनिश करने में गया है, तो बचे हुए 80 के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है. वहीं एट द सेम टाइम यू आर एबल टू फिनिश योर 20% ऑफ पोर्शन टिल द मोमेंट यू एंटर क्लास 11th, तो डेफिनेटली यू हैव दैट एडवांटेज दैट यू हैव मोर टाइम फॉर द नेक्स्ट पोर्शन. यस, okay, so now there is one more good doubt.
The certain FB, certain part, certain portion is completed for trigonometry, logarithms and this. First of all, we have to understand ये वो portion आपके FB level का नहीं होगा, ये portion आपके 11th 12th ये JEE और NEET level का होगा. उसमें बहुत enhancement होता है, जो आपने FB वगैरह में अभी तक पढ़ा होगा ना, वो तो very first lecture में ही finish हो जाएगा. The syllabus will be definitely of 11th and 12th grade. It will be of that quality. Yes. Yes. What about students who have already done foundation in 9th? Foundation will go as usual. Foundation आपका as usual चलेगा. Foundation में कोई change नहीं आएगा. आप अपना foundation finish कर लीजिए. Foundation में there is no change. This is in addition to your foundation. I think we can. What will be the days and timings? Preeti ma'am, can you tell me the days and the timings? So Yes. currently we will have it on a Sunday because students have different lectures on different days. So Sunday we will have it from 4 to 6 to begin with. Sunday, So it's not going to be clashing with any other thing. 4 to 6 p.m. Yeah. Even these lectures will be Sunday only. Yes, when it comes to 10th standard, then it will be 8 to 2, sir. When the child Yes. comes in class 10, it will be 8 to Yes. 2 p.m. Achha, I can see some students asking who will be the teachers. Definitely see, this is one of the most special batches. आपको जो teachers मिलेंगे वो definitely you will get HODs right throughout your whole tenure of 3 years. जितने भी साल आप पढ़ने वाले हैं, you will get HODs, you will get best of the best faculty. Mathematics portion I personally will be taking. You can note my name, or all the senior most faculties will be provided to you. Definitely, we understand that this is the most motivated group. This group wants something special. ये group ऐसा group है जिस group को पता है कि आगे क्या करना है और उनको already वो उनके अंदर वो spirit है. So you don't have to worry about the teaching quality. Best of the best teachers will be given. So Sunday we have our FB lectures. Yes, but 4 to 6 FB lectures are not there, right? So 4 to 6 FB lectures are not there, right? No, they are in the morning. They are in the morning. Sir, will there be any selection for this batch? Yes, definitely. Now let's come to the point. देखिए इस बैच के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ. Now let us be very clear about this batch. मुझे ये बैच बहुत पसंद है. इतने साल से मैं ये बैच पढ़ा रहा हूँ और हर साल इस बैच से बच्चे आते हैं. वही छोटे बच्चे 9th में मिले, पढ़ते 10th 11th में गए, 12th में गए, रिजल्ट आया, बेस्ट रैंक्स आई. Almost 100% selections होते हैं इस बैच से. Almost 100%. Very rarely it happens that a child in our 3-year batch is not qualified. Even when you say JEE, it top 2000 rank or something. Most of the top 100 rankers इसी बैच से आते हैं. पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि I do not recommend every child to jump on this course. देखिए, हर बच्चे को साइंस अच्छी लगती है, ग्रेट. लेकिन इस कोर्स में सिर्फ वही बच्चे जाएं जो बहुत अभी से वो मोटिवेशन और वो एनर्जी फील कर रहे हैं. हमें जबरदस्ती किसी बच्चे को इस कोर्स की तरफ डालने की जरूरत नहीं. इसीलिए हम लोग एस ऑफ पेस वाला जो टेस्ट है संडे को ले रहे हैं. उस टेस्ट में जिस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है और वो करना भी चाहता है, ओनली दो स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू जॉइन दिस कोर्स. बाकी स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप 9th और 10th में इस तरह का कोर्स करें. वी वांट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हु रियलाइज कि 9th और 10th की पढ़ाई तो हो ही जाएगी. 9th और 10th की पढ़ाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो असली पढ़ाई है, जो मेरा करियर डिफाइन करने वाली है, जो आगे मेरे को दिखाएगी कि मुझे आगे क्या करना है, उस पढ़ाई के लिए मुझे अभी से स्टार्ट करना होगा. बिकॉज 11th एंड 12th में काफी ज्यादा हेक्टिक होता है. और स्टैटिस्टिक्स गवाह है इस बात का कि जो बच्चे इस बैच में हैं उसमें ऑलमोस्ट सबके सिलेक्शंस होते हैं. ऑलमोस्ट सबके सिलेक्शंस होते हैं, बहुत अच्छी रैंक के साथ होते हैं, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेईई है. तो इफ अ चाइल्ड इज दैट क्लियर एंड अ चाइल्ड परफॉर्म्स एंड प्रूव्स हिमसेल्फ इन आवर टेस्ट, then only the child will be eligible for this batch. Otherwise, we do not recommend this batch for everyone. 5.5 hours FB and 2 hours. There will be 7.5 hours. Yes, on the Sunday it will be of 7 years. Yes. Sir, is there any provisional lectures for PCMB instead of only PCM for 9th? Okay, so what we do is, कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है सर मैं अपने बच्चे को मैथ्स और बायो दोनों कराना चाहता हूँ. देखिए, आप फाउंडेशन में आपने मैथ्स और बायो दोनों किया, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, वेल एंड गुड.
लेकिन जब आप 11th और 12th में जाते हैं तो वी डू नॉट रिकमेंड बोथ मैथ्स एंड बायो इन 11th एंड 12th। मैथ्स इतना छोटा सा सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, बायो भी इतना छोटा सा सब्जेक्ट भी नहीं रह जाएगा। दे आर बिग सब्जेक्ट्स। दोनों एक साथ करना इज लाइक दोनों दो नावों पे कदम रख के चलने की कोशिश करना। वी रिकमेंड कि बच्चा दोनों सब्जेक्ट एक साथ ना ले, इसीलिए मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स वाला ये पोर्शन क्लास 9th में अगर कर लेंगे, उनको आगे कभी मैथमेटिक्स की वो रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी। They'll always feel comfortable, they'll always feel happy with physics and everything, definitely। तो यूजुअली क्या होता है, बायो के बच्चों को डर लगता है कि मेरे को इंटरेस्ट तो मुझे बायो में है, लेकिन मेरे को मैथ्स भी लेना है, मैंने सुना है मैथ्स से पूरी दुनिया चलती है, मैथ्स ऐसा। आपको जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है जो आपको जरूरत पड़ने वाली है मेडिकल के लिए, वो डेफिनेटली हम बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में आपका कवर करते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ऑल्सो जो पेरेंट्स पीसीएमबी दोनों सोच रहे हैं कि नहीं मैं बच्चे के दोनों ऑप्शन ओपन रखना चाहता हूँ, ट्रुथ ये कि आप बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर दोनों नहीं बना पाओगे, आप एक ही चीज बनाओगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू चूज कि भाई मैं बच्चे को इस फील्ड की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। उस चॉइस के लिए आप बच्चे का डिस्कशन मुझसे भी करा सकते हो। बच्चे के टेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों वाला टेस्ट जो हमारा टेस्ट का सिलेबस आएगा उस सबसे दोनों टेस्ट दे सकता है बच्चा। दोनों टेस्ट देने के बाद जिसमें उसके बेटर मार्क्स आ जाए उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। ऑल्सो इवन इफ स्टिल अगर कोई पेरेंट ये सोचता है कि नहीं मुझे दोनों ही दिलाना है, वी विल कीप बायो टाइमिंग्स इन सच अ वे कि बच्चा पीसीएम के लेक्चर्स तो अटेंड कर ही सकता है, पर बायो का स्लॉट एक सेपरेट रख देंगे तो बायो के लेक्चर्स भी वो सेपरेटली अटेंड कर सकता है। However, we do not recommend such a thing. We recommend, देखिए सी try and understand. लास्ट ईयर हमारे पास 3 ईयर कोर्सेज में टोटल बच्चे कितने थे पेस में? टोटल बच्चे पूरे पेस में टोटल बच्चे 3 ईयर कोर्सेज में हमारे पास टोटल 100 बच्चे। दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर एनी वॉल्यूम और मास एडमिशंस और रेवेन्यू जनरेशन, नथिंग। नो, दिस कोर्स इज फॉर रिजल्ट जनरेशन। ये पढ़ाई के लिए बनाया जा रहा है और सिर्फ उसी के लिए। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है हर बच्चे को बेस्ट गाइड करना। बच्चा पीसीएमबी करना चाह रहा है, करे, ग्रेट, फैंटास्टिक, वो हमें दोनों की फीस दे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, हमारा फर्ज बनता है उसको सही चीज बताए, दोनों मत करो, एक चीज चूज करो और उसको बहुत अच्छे से करो। उसको अच्छे से करोगे डेफिनेटली इन दिस कोर्स यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। लास्ट ईयर जो हमारे इंजीनियरिंग वाले इस कोर्स में there were 80 students. Out of those 80, 77 got selected in IITs this year, उनकी रैंक से। So that is the kind of ratio this batch commands. तो इसके लिए हमें वो क्लैरिटी वाले बच्चे चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना है, I want to do this only. Okay, so now, sir, will it be having other subjects other than PCM like history, geography? No. Now let's see, understand. When you go in class 11th and 12th, you have to choose a college. You will choose Pace Junior Science College, जो आपके क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। प्रीति मैम, you want to take this down? Student is asking, sir, what about other subject? So you have to basically tell him about the integrated course that the child will go into in class 11. Yes, so of course in 9th and 10th we will be doing PCM, and there were some queries if we can do PCMB, so we can give some time till the child is able to decide which stream to be pursued. Yeah, coming to 11, 3-year courses only run in combination with Pace Junior Science College students, understanding the fact that the time that is required has to be balanced out, and with different institutions, this is going to be a very challenging scenario. So this course is run only with Pace Junior Science College, and there is a subject choice. So you will be continuing with PCM or PCB in the coaching section. While in the college, yes, you have a combination of subjects where you can take physics, chemistry, math along with the bifocal subject. And if there is a student who still wants to pursue maths and bio both, yes, that is also available, right? So obviously English is a compulsory subject, and there are other selective subjects one has to take apart from the core subjects. But I make it clear that this is a program which only works with Pace Junior Science College. I hope that addresses the query. Yeah. Sir, can't we choose our batch in engineering or medical? Yes, you can choose one of them. एक ही batch आप choose करिए, दोनों नहीं. Sir, will there be doubt session? Of course, there will be doubt session. जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये पढ़ा रहा हूँ, आज मुझे माइक इसलिए बंद करना पड़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स बैठे। अगर सिर्फ बच्चों का सेशन होता ना तो मैं माइक आपको ऑन करने की परमिशन देता, आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कशन करते। यूजुअली क्या होता है ना, पेरेंट्स में वो पेशेंस नहीं होता डाउट पूछने का, पेरेंट्स बहुत जल्दी करते हैं, इसके लिए हमने ये सेशन में आज माइक ऑफ करा हुआ।
बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े आराम से माइक ऑन करके डाउट पूछते हैं, सब कुछ. सो एवरीथिंग डाउट सेशन एटसेट्रा विल बी कंडक्टेड फॉर 3 year बैच. इट गोज एग्जैक्टली एज द रेगुलर बैच. देयर आर फ्यू डिफरेंसेस. The HODs teach this batch, one. Best of the best teachers teach this batch, one. Second, the peer group is special. जितने भी बच्चे, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, पीयर ग्रुप बहुत क्रूशियल है इस बैच में. आपके बैच में मैंने होमवर्क दिया, मैंने कहा कि कल वेक्टर्स के चैप्टर की एक्सरसाइज सबको करके आनी है. When you come to the class, you realize that you have done the homework, the other students have not. When other students have not done the homework, the teacher has to wait. ओके चलो अगली बार करके लाना, तब डिस्कस करेंगे. डू यू रियलाइज इससे एक लेक्चर का टाइम वेस्ट हो गया. लेकिन अगर आप होमवर्क करके लाए, आप वेक्टर्स का होमवर्क करके लाए, इन योर बैच यू रियलाइज दैट मेरा वाला वेक्टर्स का होमवर्क जो मैं करके लाया वो तो सब बच्चे करके लाए, कुछ बच्चे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करके लाए. देन यू रियलाइज ओके दैट मींस आई मस्ट प्रैक्टिस आल्सो मोर. तो आपको उनसे इंस्पिरेशन मिला, यू स्टार्टेड वर्किंग मोर. अंडरस्टैंड दैट इन दिस बैच द पीयर ग्रुप प्लेज अ वेरी बिग रोल. तो पीयर ग्रुप जब इतना अच्छा होता है तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ दिस बैच इज डेफिनेटली द टीचर्स. सेकंड क्वालिटी इज द पीयर ग्रुप. यू गेट एक्सीलेंट पीयर ग्रुप. एवरीवन इज मोटिवेटेड. कोई भी वहां टाइम वेस्ट करने नहीं आया. इनफैक्ट ये टाइम वेस्ट करने वाला फैक्टर बहुत क्रूशियल हो जाता है जब इनिशियल कुछ सेक्शन में हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन कंडक्ट होने वाले. ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर जो बच्चे सीरियस है, अगर वो लोग जुड़ेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को काफी बेनिफिट होता है. थर्ड चीज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इज यू गेट दैट एक्स्ट्रा टाइम. इस कोर्स में आपके पास गलती करने का मौका है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आगे फ्रिक्शन का एक चैप्टर आता है फिजिक्स में. फ्रिक्शन के चैप्टर में यूजुअली बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, बहुत जगह फंसते हैं. 11th में क्या होता है, फ्रिक्शन के चैप्टर जब चल रहा होता है, फ्रिक्शन का चैप्टर खत्म होने पे आ रहा होता है, उसके तुरंत सर्कुलर मोशन वगैरह के चैप्टर्स आ जाते हैं. बच्चा जब फ्रिक्शन के चैप्टर में गलती करता है उसके पास गिरने के बाद संभलने का मौका नहीं होता है, क्योंकि उसको अगले चैप्टर्स करना. लेकिन इसमें बच्चा क्लास 10th में फ्रिक्शन का चैप्टर कर रहा है. समझने की कोशिश कीजिए, फ्रिक्शन का चैप्टर जब उसने क्लास 10th में किया, उसको इस हफ्ते दिक्कत हुई, वो नहीं कर पाया. अंडरस्टैंड दैट ही हैज 1 वीक, फुल वीक टू सिट एक्स्ट्रा विद हिज टीचर्स एंड मेक श्योर जिस पार्ट में उसको दिक्कत है वो कवर कर ले. इस कोर्स में बच्चे के पास गिरकर संभलने का मौका है. दैट इज द रीजन वी गेट सच फैंटास्टिक रिजल्ट्स. जो मैंने आपको रिजल्ट 90% सिलेक्शंस बताए आपको कि हमारे 3 year बैच से लास्ट ईयर जेई के लिए 90% सिलेक्शंस हैं. वी हैड ओनली 80 स्टूडेंट्स, उसमें से भी 75 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो गए. नीट के लिए तो वो रेशियो 100% है. There were only 12-13 students there and all of them got selected. You understand that this is achieved because these students get time. You get time to prepare. जब आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, जब आपको चीजों को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है, ना आपको टेंशन होता है, आप चीजें एंजॉय करते हो. आप फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट जो हम लोग चीजें सुनते हैं ना कि बच्चा परेशान हो गया तैयारी पे, वो सब चीजें तब होती है जब टाइम की कमी होती है. आप वही पढ़ाई 1.5 साल में ऐसे स्क्वीज इन करना चाह रहे हैं, जिसमें बीच में प्रीलिम्स भी आएंगे, क्लास 12th की पढ़ाई भी आएगी. अगर वही पढ़ाई हम आराम से डिस्पर्स करके बच्चे को प्रेजेंट करें, बच्चे की स्पीड के हिसाब से करें, और बच्चा हमारा मोटिवेटेड है, तो डेफिनेटली देयर इज नो रीजन द चाइल्ड शुड नॉट गेट सेलेक्टेड. यस सर, आफ्टर द लेक्चर लॉकडाउन विल, ऑफ कोर्स आफ्टर द लॉकडाउन, हाँ एकदम, एक बार लॉकडाउन अगर खत्म हुआ तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट नहीं कर देंगे. वी वोंट स्टार्ट दी लेक्चर्स तुरंत ऑनलाइन. कुछ दिन तो आप भी वेट करेंगे, देखेंगे कि भाई माहौल कैसा है, क्या है. तो उसके बाद जैसे जैसे सेंटर्स ओपन होंगे, द लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड एट योर रेस्पेक्टिव सेंटर्स. You don't have to travel to Andheri. It is not only for Andheri. This is for every respective centers. The teachers who are teaching you, you will get the same quality of teachers who will be teaching you at your center. तो ये जो हमारा बैच बनेगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा. Last year also we had only 8 students at Dadar in the 3 year batch. There were 30 students at Andheri in 3 year batch. वो छोटे छोटे बैच होते हैं. Understand that with this batch, no one is looking at the revenue generated or anything. Everyone is looking at the result and the good quality students. A good quality student must opt for this batch. उसे बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड किए जाए, उसको टाइम दिया जाए, और वो अपने आप एंजॉय करके ये पढ़ाई करता जाए, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. दिस इज दैट काइंड ऑफ बैच. तो छोटे 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 बैच बनेंगे. यू विल गेट द सेम क्वालिटी ऑफ द टीचर्स जो आप आपके सेंटर पे मिलेंगे. ऑल दोस फैसिलिटीज ऑफ द सेंटर विल बी अवेलेबल टू यू. एवरीथिंग विल बी देयर. Sir, what about competitive exams? There will be other lectures for this. Understand that this course is aimed at JEE and NEET. तो जो PCB वाले बच्चे हैं वो नीट की तैयारी करेंगे, जो PCM वाले बच्चे हैं वो जेई की तैयारी करेंगे. ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस अम्ब्रेला में आते हैं,
जैसे इसके अम्ब्रेला के अंदर छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आते हैं ना, बीच में ओलंपियाड आता है, वो सब, उन सब की तैयारी साथ में करेंगे। एस ऑफ पेस एग्जाम के बारे में बात हो रही है। एस ऑफ पेस एग्जाम का सिलेबस विल बी पोस्टेड इन योर बैच ग्रुप्स, द सिलेबस विल बी गिवन टू यू, ओनली इन दैट, ऑन दैट सिलेबस द टेस्ट विल कम। कई बच्चे बोलते हैं सर उस सिलेबस के लिए मुझे पढ़ाई करनी है, आई वांट टू प्रिपेयर, बट लेट मी टेल यू, आई फील उस सिलेबस के लिए बिल्कुल पढ़ाई मत करना, बिना पढ़ाई के बाद आप एस ऑफ पेस का एग्जाम दें, क्योंकि वी वांट टू चेक जेन्युइन गुड क्वालिटी। वी डोंट वांट टू चेक कि बच्चे ने एक हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली और उसके मार्क्स अचानक से अच्छे आ गए, उसकी जरूरत नहीं। आप मार्क्स चाहे जो असली मार्क्स है वो आने दीजिए। इस एक हफ्ते बाद जो एग्जाम होगा आपको उसका सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा, उस सिलेबस पे आपके जो मार्क्स आते हैं, आपका नेचुरल एबिलिटी हमें पता लगना चाहिए, उस नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से हम आपको एडवाइस करेंगे इस कोर्स के बारे में। Understand that we do not recommend this course for every child, but we do recommend for anyone who feels कि जिसको क्लैरिटी है उसके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, पर ऐसा कोई बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही करना चाह रहा है उसके लिए रिकमेंडेड नहीं। What about mock test? Everything will be there. Mock test, test process, everything will be there. एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होंगे, दो चैप्टर फिनिश होने के बाद मेजर टेस्ट होंगे, द होल प्रोसीजर विल बी देयर। ऑल्सो इस बैच का एक और एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूँ, इज अ वेरी बिग एडवांटेज विद दिस बैच। आई विल टेल यू व्हाट बिग एडवांटेज दिस हैव। आमतौर पर क्या होता है, यू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई हमारी 2 to 3 ईयर चलने वाली है, 2-3 साल हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अब आप एक चीज सोचिए, बच्चे ने फिजिक्स में न्यूटन लॉस वाले चैप्टर से स्टार्ट किया, वेरी गुड क्वेश्चन समबडी आस्क्ड, न्यूटन लॉस से स्टार्ट किया, चलते 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 अब वो रोटेशन पे आ गया, फिर चलते 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 अब उसका ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब वो ऑप्टिक्स पढ़ रहा है तो यू डू अंडरस्टैंड ना, देयर इज अ डेंजर विद द चाइल्ड फॉर गेटिंग कि भाई पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत पहले पढ़ चुका है, ये सब चैप्टर भूल सकता है, उसको दिक्कत आ सकती है, उसको रिवीजन कैसे प्रॉम्प्ट किया जाए कि बेटा थोड़ा सा रिवाइज करो। Now with 3-year batch, the biggest advantage these students have, first of all, इनका सिलेबस बाकी बच्चों से फास्ट चलता है। फॉर एग्जाम्पल इनकी क्लास में ऑप्टिक्स चल रहा है, पर दूसरे बच्चे अभी तक रोटेशन पे हैं, वो लोग पीछे हैं। So 3-year batch is able to take 2 kinds of test, एक तो अपना वाला टेस्ट जो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और एक पुराना टेस्ट भी वो लोग दे सकते हैं, तो उनका साथ साथ पुराना भी रिवीजन होता रहता है। दे आर एबल टू कम्पीट देमसेल्व्स कि मैं दूसरे बच्चों के साथ परफॉर्मेंस के साथ कैसा कर रहा हूँ और मैं अपने बैच में कैसा कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड दैट, जब हमारी पेस की रैंक लिस्ट बनती है, यूजुअली हमारी टॉप 10-20 रैंक में वो 3 इयर्स बैच वाले स्टूडेंट्स ही रहते हैं। यस, सो दिस एडवांटेज इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर एनी चाइल्ड जिसको ये प्रॉब्लम होती है कि मैं आगे का पढ़ता हूँ तो पीछे का भूल जाता हूँ। तुम आगे का पढ़ते जा रहे हो, इसमें पीछे के टेस्ट भी साथ साथ आते जाएंगे, तो आपका वो दिक्कत नहीं होगा। सर, विल देयर बी अ डिफरेंट कोर्स फॉर प्री आरएमओ? यस, फॉर प्री आरएमओ एटसेट्रा we will conduct separate batches, separate courses will be there। उसके लिए हम लोग एक अलग से टेस्ट कंडक्ट करके हम लोग बच्चे चूज करेंगे। How old is this 3-year course? This 3-year course is about 8 to 9 years old at least। प्रीति मैम, पार्थ पंडित वाला बैच कितने साल पुराना है? I think 8 to 9 years हो गए, right? Yes sir, 8 years। 8 years old this batch is। 8 batches have passed out of this 3-year course। Almost 90% plus selections are there from this course। The selection ratio of 3-year batch versus the rest of the batch, there is a huge difference। This is a special batch, please understand that। What about other than these 100 students who don't go to 3-year course? What is the rigor for them? For them, see, we have to understand, for any student who doesn't go for this 3-year course, उसके लिए पढ़ाई वैसी होगी, वो 9th में भी FB की पढ़ाई कर रहा है, फिर वो 10th में FB की पढ़ाई करेगा, फिर वो 11th में आने के लिए हमारा एसओ पेस एग्जाम देके उसके बाद वो 11th की क्लास मई वाले मंथ से या अप्रैल एंड वाले मंथ से स्टार्ट करेगा और वहां से उसका कोर्स चालू होगा। बट हिज जेई प्रिपरेशन और नीट प्रिपरेशन विल बी ऑफ 1.5 to 2 years उसके हिसाब से, तो उसको वही पोर्शन उतने टाइम में करना होगा। There are few more things। Sir, if we are not able to decide on NEET or JEE, so okay, so there are 2 questions that are coming। अगर सर हम नीट और जेई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए फ्रैंकली डिसीजन ये काफी मुश्किल होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे होशियार होते हैं।
मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था जब मेरे पेरेंट्स डिसाइड करना चाह रहे थे इसको इंजीनियर बनाना है कि डॉक्टर बनाना है, उस वक्त डिसीजन मुश्किल होता है। पर फ्रैंकली इतना मुश्किल है नहीं, हम ओवर थिंक करते हैं तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों जो फील्ड है, दोनों फील्ड की अपनी अपनी क्वालिटीज है, दोनों फील्ड के अपने अपने अपॉर्चुनिटीज है। मेडिकल फील्ड फैंटास्टिक फील्ड है, मेडिकल फील्ड मतलब एवरग्रीन फील्ड है, कभी दिक्कत नहीं है। और आजकल तो जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो किसी सोल्जर से कम है। एंड फ्रैंकली फॉर देयर सर्विस फॉर दिस नेशन इन दीज ट्रबल टाइम्स, हैट्स ऑफ टू देम। वहीं एट द सेम टाइम इंजीनियर्स भी जो करते हैं वो भी किसी सर्विस से कम नहीं होता। इस टाइम जैसे दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, देयर आर सो मेनी जॉब्स व्हिच आर एंडेंजर्ड ड्यू टू ऑटोमेशन, और हर चीज की तरफ हर चीज बदलाव से गुजर रही है। कुछ फील्ड ऐसे हैं जो इस चीज से बचे हुए हैं या इस तरह से उनको फायदा होता है, दैट इज इंजीनियरिंग। ऑटोमेशन से फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, आई यूज्ड टू हायर अ सीए फर्म जिसे मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए बोलता था। हर साल मुझे उसके साथ बैठ के बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता था, फिर हमारे रिटर्न फाइल होते थे। दिस ईयर आई वाज एबल टू डू सो विद अ फ्यू क्लिक्स ऑन अ वेबसाइट। So there are so many professions who do have this danger of getting redundant these times, but not engineers, क्योंकि automation लाने वाले लोग यही हैं। So if you're a computer science engineer, you can be on the right side of the equation rather on the wrong side of the equation. So definitely it is a better field to choose. दोनों फील्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। आप इतना जो आपका इंटरेस्ट है आपको कह रहा है, आप उसको चूज कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट दोनों में ही है तो फिर ये डिसाइड कीजिए कि आपकी कौन सी इनहेरेंट क्वालिटी है जो आपके अंदर है। देयर आर टू इनहेरेंट क्वालिटीज जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज को सेपरेट करती है। फॉर इंजीनियरिंग, फॉर दिस द इनहेरेंट क्वालिटी इज लॉजिक। लॉजिक, ये वो बच्चे हैं जिनको पजल्स पसंद आती है, पजल्स पसंद आ रही है। ये वो बच्चे हैं जिनको किसी भी खिलौने को, मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, किसी भी खिलौने को, टॉय को इन्होंने ओपन कर दिया, ओपन करके वापस जोड़ दिया, रिक्रिएट कर दिया, ये वो बच्चे हैं। दीज आर दोस, इनके कहते हैं ना, इनके दिमाग में थोड़ा सा फतूर होता है, ये वो बच्चे हैं। मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, their first base important quality that a medical should be hardworking, and yes, ability to retain information, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन से प्यार होता है। ये वो बच्चे हैं यूजुअली जिन्होंने फॉर एग्जांपल डिस्कवरी चैनल देखा, उन्हें बहुत मजा आ रहा है देखने में कि टाइगर ऐसे रहता है, स्नेक ऐसे रहता है। दे आर इन लव विद द इंफॉर्मेशन। इन्हें जितनी जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें मजा आता है पढ़ने में। ये वो बच्चे हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन से ज्यादा कुछ ना कुछ कीड़ा करने में मजा आता है। दो इनहेरेंट ट्रेट होते हैं, जिस बच्चे के अंदर दोनों में से जो ट्रेट है ना, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मोटे तौर पर मैं ये बताऊं कि कुछ बच्चे न्यूज़पेपर रीड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे न्यूज़पेपर का पजल सेक्शन जो क्रॉसवर्ड होता है, ये सब होता है ना कि वो गेम है कि यहाँ से यहाँ तक रास्ता ढूंढ के निकालो, जिन बच्चों को ये सब चीजें पसंद आती है, दो पिक्चर से उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा डाउट यहाँ पर कुछ पेरेंट्स, कुछ आई थिंक दो तीन अलग अलग जगह से आ गया, हाउ डू यू डिसाइड दैट द चाइल्ड इज मेड फॉर दिस काइंड ऑफ फील्ड? Does let me tell you, there are few basic symptoms that you feel that a child is made for this kind of field. The first basic symptom is this. कि बच्चे ने, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके घर में कोई नया गैजेट आता है, मैं आपको छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स बताता हूँ जिससे आप जज कर सकते हैं कि मेरा बच्चा इस फील्ड में जाने के लिए काफी सूटेबल है। दिस फील्ड मतलब साइंस फील्ड के। आपके घर में कोई नया गैजेट आता है, गैजेट आया और डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में नया डिशवॉशर आया, तो डिशवॉशर आया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसने दिखाया सर ऐसे चलाते हैं, ऐसे बर्तन रखते हैं, ऐसे धुल जाते हैं, ये सब होता है, और फिर वो चला। उसके बाद मम्मी पापा ने उसे ऑपरेट करने की कोशिश की, वो अटक गई। उसके बाद उन्होंने बोला भाई देखो जरा कौन इसको देखो कैसे होगा, कौन सही करेगा।
तो जब आपके घर में कोई गैजेट आता है तो आपके घर में उस गैजेट को सबसे आराम से कौन ऑपरेट कर लेता है? अगर ये काम बच्चा कर लेता है तो आमतौर पर इस बच्चे के अंदर फर्स्ट बेसिक क्वालिटी है विच इज कॉल्ड ग्रेस्पिंग पावर। ये चीजों को पकड़ लेता है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोलेगा, उसको देख के समझेगा, अच्छा 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 ऐसा करना है, ऐसा करना है। ध्यान दीजिए साइंस की बुक्स भी आगे इसी लैंग्वेज में लिखी होती है कि अच्छा ऐसा करना है तो ऐसा करो, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ऐसा करो, अच्छा ये फंडा लगाना है ये। तो वो इंस्ट्रक्शन एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में गिवन होती है। कुछ बच्चों के लिए ये फ्लो चार्ट टाइप की इंफॉर्मेशन बड़े आराम से पकड़ में आ जाती है। जिन बच्चों के लिए बड़े आराम से पकड़ में आ जाती है फ्लो चार्ट टाइप की इंफॉर्मेशन, इन बच्चों के अंदर होती है ग्रास्पिंग पावर। फॉर साइंस दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी योर चाइल्ड शुड हैव। इफ योर चाइल्ड हैज दिस क्वालिटी कि वो चीज को बड़े आराम से पकड़ लेता है, आपको दिखता है यार बड़ी जल्दी समझ गया, मैं भी नहीं समझ पा रहा था ये चीज को, दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। देन लेट मी टेल यू द सेकंड क्वालिटी योर चाइल्ड शुड हैव। कभी बच्चे ने स्कूल से घर आके कंप्लेन करी हो, अब तो खैर स्कूल जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई टेस्ट वगैरह पहले हुआ और कंप्लेन करी हो कि पापा स्कूल में एग्जाम हुआ, मेरा आंसर सही था पर टीचर ने फिर भी मार्क्स काट दिए क्योंकि मैंने आंसर दूसरे मेथड से किया। नो टिल क्लास 10 दिस इज अ नेगेटिव क्वालिटी क्योंकि वो दूसरे मेथड से आंसर निकाल रहा है, लेकिन फॉर क्लास 11th एंड 12th दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव बेस्ट पॉजिटिव क्वालिटी योर चाइल्ड कैन हैव। क्योंकि इस बच्चे के अंदर ना सिर्फ ग्रेस्पिंग पावर है, इसके अंदर एप्लीकेशन पावर भी है। ये बच्चा जो उसने ग्रेस्प करी है चीज उसको अप्लाई भी कर पा रहा है और अपनी लैंग्वेज में अप्लाई कर पा रहा है। रट कर लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बच्चा उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज अपना थॉट लाता है। क्लास 11th एंड 12th में सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आप हर चीज उसी तरह से नहीं कर सकते, आप हर क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। आपको ऐसा पढ़ाई करना है कि 4 क्वेश्चन पढ़े उसके बेसिस पे 40 या 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। इसीलिए आपको वो 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपके ब्रेन में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो दैट इज द एप्लीकेशन पावर। आमतौर पर ये वो बच्चे होते हैं जिनसे पूछे भाई डेफिनेशन बताओ चार्ज की, वो डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट लैंग्वेज में, और उसका मीनिंग बता देंगे, अरे इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा। दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। इन बच्चों को यूजुअली स्कूल में बहुत डांट पड़ती है, तुम बुक का क्यों नहीं आंसर लिख रहे हो। वो बच्चा कह रहा है मैं भी तो वही बता रहा हूँ जो बुक में लिखा है, बस दूसरी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तीसरी क्वालिटी इन बच्चे के अंदर डेडिकेशन होता है। वो डेडिकेशन किस टाइप का हो सकता है? इस बच्चे का डेडिकेशन ऐसा होता है इसे नई नई इंफॉर्मेशन जानना अच्छा लगता है। अगर नई नई इंफॉर्मेशन जानना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये बच्चा मेडिकल की फील्ड की तरफ जाना चाहिए। और अगर इस बच्चे को जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके साथ कुछ खेल करना पसंद आ रहा है, खेल करना पसंद आ रहा है, ये बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उसको टॉय मिला, उसने टॉय को खोला, उसके हाथ निकाले, हाथ पैर की जगह जोड़ दिए, पैर की जगह हाथ जोड़ दिया, वो देख रहा है नट एंड बोल्ट खोल के, ये बच्चा मैथमेटिक्स की फील्ड के लिए। तो दोनों अलग अलग ट्रेड्स हैं, आपके बच्चे के अंदर जिस टाइप का ट्रेड है उस टाइप की तरफ देखिए। अगर फिर भी डिसाइड ना हो पाए, आप सिंपली एग्जाम दिलवाइए उसको, जिस एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर रहा है उससे अच्छा सिम्टम तो कुछ नहीं। We do have Richa ma'am with us, and she's fantastic teacher for medical, and she has just joined us. Richa ma'am, you want to elaborate something more about medical? Richa ma'am, Yes, sir. Yes, sir. please. You can switch on your camera. Yeah. Good evening, everyone. My name is Richa Gaur, and I'm the botany faculty at PACE. So, as sir very correctly has told that, in these gloomy days right now, medical field has done wonders for us. And, it's like NEET is one examination across our nation today, only via which we can enter into this field. Initially, we had multiple examinations, but today we just have this NEET examination. Normally, in our times, we did not have this opportunity to have a 3-year program or something like this. What we used to do is, after our 10th standard examination, we used to enroll for 11th standard and then come up with the NEET preparation, or those days we had AITMT, that particular preparation. Today, as and when we have advanced a lot, even in this education industry, we have this opportunity wherein I feel that the parents should definitely, take it up and use it for the betterment of the child. I'll give one example. Whenever we have our students coming in directly 11th standard, we conduct approximately after 2.5 months, we conduct an examination called major test, जो शायद आप लोगों ने फाउंडेशन में भी अपने बच्चों को देते हुए देखा होगा. Now this major test के जो first हमारे पास marks आते हैं, parents are also very much concerned that अरे इसमें marks कम आ चुके हैं, इसमें marks ज़्यादा आए हैं, ये subject थोड़ा weak लग रहा है, ये subject थोड़ा strong लग रहा है, इसमें कैसे मेहनत की जाए, ये सारी बातें आती हैं after 2.5 months of joining the course.
अब आप ये समझिए, हम पेरेंट को तो उस वक्त ये समझाते हैं कि दिस इज अ ट्रांजिशन फेज, बच्चा 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आया है, वो थोड़ा टाइम लेगा, वो थोड़ा एक्लिमेटाइज होगा, वो थोड़ा अडेप्ट करेगा अपने आप को, नए टीचिंग मेथोडोलॉजी को, नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा, एंड प्रोबेबली वो ग्रेजुअली थोड़ा फोकस कर पाएगा एंड अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाएगा. दिस इज व्हाट वी जनरली से, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट. इट इज ह्यूमन नेचर. हम तुरंत स्विच नहीं हो सकते हैं. 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ाई अलग तरीके से की है, नीट और जेईई मेंस एडवांस का अप्रोच अलग होता है. So this 3-year program would always give your child a complete, or a span of around 2 months, 4 months का एक पूरा span मिलेगा आपको, wherein आपका बच्चा acclimatize करेगा. उसको पता होगा कि अच्छा नीट एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस इस तरह पूछे जाते हैं. डायरेक्टली वो सीधा 11th स्टैंडर्ड में आके उसको ये सारी चीजें फेस करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि बच्चा जब भी हमारे पास आता है क्लासरूम कोचिंग में, तो डेफिनेटली एक काइंड ऑफ रैपो बिल्ड हो जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और वो रैपो चलता है पूरा 2 एकेडमिक ईयर. एंड कंफर्ट जोन में बच्चा आता है, हमें पता चलता है कि बच्चा कौन सी चीज में वीक है, कौन सी चीज में वो स्ट्रॉन्ग है, और उस हिसाब से हम बच्चे को पॉलिश करते हैं. Now imagine again that if your child has come around 6 to 8 months prior than that, then of course हमने बच्चे को ज्यादा जल्दी जाना है, बच्चा हमारे साथ ज्यादा जल्दी अच्छी तरह से रैपो बिल्ड कर देगा, and eventually the flow of the 2 academic years will be far more smooth than the normal 11th and 12th mechanism that we have been always following. तीसरी चीज, जैसे कि सर ने हमें ऑलरेडी बताया, that बेसिक्स हम काफी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं. हमने 10th स्टैंडर्ड तक भी बच्चों को यही बोला है. एज एन मेरे पेरेंट हमेशा मुझे यही बोला करते थे, आई वाज ऑफ कोर्स वीक इन मैथ्स, तो मुझे यही बोला करते थे कि भाई आपने बेसिक्स अपने क्लियर नहीं कर पाए हो आप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग विद मैथमेटिक्स. तो जितना ज्यादा टाइम आपका बच्चा हमारे साथ स्पेंड करेगा, हमारे साथ लेक्चर्स में बैठेगा, हमारे पास डाउट सेशंस में बैठेगा, उतना ही ज्यादा उसका बेसिक क्लियर होता जाएगा, एंड वो एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ बैठेगा जब वो नॉर्मल 11th स्टैंडर्ड में आके पढ़ना आगे कंटिन्यू करना शुरू करेगा. एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, we have seen vast differences between the children who have enrolled us for 2 years and who has enrolled us for the 3-year program when they give their final NEET examination. अब समझिए, हम जो 2 साल का हमारा जो कोर्स होता है, उसमें लगभग हम लोग 50 to 80 नंबर ऑफ टेस्ट, मेजर टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह सब मिला जुला के जितने टेस्ट होते हैं, मैं मिनिमम नंबर दे रही हूँ आपको, 50 से 80 नंबर ऑफ टेस्ट अगर उसके होते हैं, अब वो 50 to 80 टाइम्स ही वो नीट वाले एनवायरनमेंट में बैठा है कि बंदा 3 घंटे का टेस्ट देने वाला है, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको सॉल्व करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट उसको पहले चूज करना है, बिकॉज फाइनल नीट एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक ही साथ एक क्वेश्चन पेपर बुकलेट में आने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू स्ट्रगल विद दोस क्वेश्चंस फॉर 3 आवर्स. ये मार्क करूँ, नहीं मार्क करूँ, नेगेटिव मार्किंग है, उसका भी उसे ध्यान रखना है. अगर वही टेस्ट के नंबर भी बढ़ जाते हैं, उसको ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है कि भाई हम 3 घंटे के अंदर कौन सी चीजों को पहले करें और कौन सी चीज को बाद में की जा सकती है. बायोलॉजी पहले सॉल्व करना ज्यादा बेटर है या फिजिक्स या केमिस्ट्री. बहुत बार मेजर टेस्ट और मॉक टेस्ट लिखते लिखते बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि मैम shall we write biology paper first or we should go for physics or chemistry, and then what we say is of course हम direction देते हैं, but eventually कौन सा बच्चा क्या करने के लिए comfortable है वो स्टूडेंट पे ये डिपेंड करता है. So as in when the child would write more number of tests, automatically उसको एक proper एक particular methodology मिल जाएगा एक particular question paper को solve करने. So that is one thing which I wanted to add, and parents we can understand this, right? आप ये इमेजिन कर लीजिए कि समझिए हम रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ वाला बंदा एक फ्रेशर है और हम जो है वो लगभग 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं. हम सबको पता है कि जो सामने जॉब देने वाला बंदा बैठा है, he would always select the one who has a bit of experience. I'm not saying that the fresher is bad, but एक्सपीरियंस वाले बंदे को ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा नंबर ऑफ चांसेस है कि उसको वो जॉब मिलेगा. यहाँ पे वही तो चीज हो रही है. अगर बच्चा हमारे पास कुछ टाइम पहले से आया हुआ है, 3 साल के प्रोग्राम में है,
तो उसके पास ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा बेटर उसका सिलेबस पहले कवर हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, एज सर है टोल्ड, 2 साल वो सिर्फ नाम के लिए 2 साल होते हैं, वो एक्चुअल में 2 ईयर का स्पैन नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमने बच्चों को पहले से ही इस चीज में ट्रेनिंग दे दी तो ज्यादा बेटर होगा। एक और पॉइंट मुझे जो अभी याद आ रहा है, अगर हमने उसको नॉर्मल फाउंडेशन बैच में बिठाया, विच इज ऑल्सो फैंटास्टिक कोर्स बाय द वे, वहां पे एक मिक्सचर ऑफ क्राउड के साथ बैठेगा वो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आर्ट में इंटरेस्टेड होंगे। आई कंप्लीटली अग्री का फील्ड का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर हमारे बच्चे ने थोड़ा ज्यादा सोच के रखा है कि भाई मैं साइंस की तरफ जाऊंगा, और उसके साथ में बैठने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड बोल रहा नहीं आई एम गोइंग फॉर कॉमर्स, तो हो सकता है कि भाई अपना बच्चा भी थोड़ा सा उसका जो उसने सोच रखा है उसमें वो थोड़ा सा बेचारा हिल जाए कि भाई मैंने जो सोच रखा है वो सही है कि नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल पीयर प्रेशर, राइट। अब इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा शुरुआत से ही ऐसे लोगों के बीच में सराउंडेड है जो जिन सबका फोकस एक ही है, एवरीबडी वांट्स टू डू मेडिकल, एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर engineering or JEE mains or advanced. Yes, sir. There is one doubt coming from Yeah. few parents, and I think that doubt has been repeated 7-8 times. So I should take that doubt. The doubt is Okay. which board is Pace Junior Science College, and what if I want to go with CBSE? Okay. So first of all, our Pace Junior College, let us be very clear. In class 10, जो बच्चे इस कोर्स में आएंगे वो FB नहीं करेंगे, उन्हें FB की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दे हैव एंटर्ड द रियल कोर्स जिसके लिए वो तैयारी करना चाह रहे हैं। 10th FB बैचेस सेपरेट हो, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उन बच्चों को 10th FB करने की कोई जरूरत भी नहीं है जो इस कोर्स में है, वो अपनी असली कोर्स की तरफ जा चुके हैं। ये सिर्फ एक इन बच्चों के लिए जो इस कोर्स में उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह। सेकेंड चीज, जो बच्चे क्लास 11th पे आएंगे एंड दे आर सेइंग कि सर वी वांट टू डू दिस कोर्स विद CBSE, वी वांट टू डू दिस कोर्स विद ICSE, लेट मी टेल यू, Pace Junior College is state board. Now we have permission, we have permissions, and we have tie-ups with Podar. We have our own CBSE school at Wagad. There are many options possible. But why have we chosen Pace Junior College to be of state board and not gone for CBSE board or any other board? That is also very crucial. Let us understand. देखिए आमतौर पे क्या होता है, बच्चे क्लास 10 तक CBSE बोर्ड, ICSE इसमें रहते हैं, तो अपने बोर्ड से जेन्युइनली काफी प्यार हो जाता है, काफी पसंद आता है। फिर उनको बोलना कि 11th में आती तुम उसे स्टेट बोर्ड में चेंज कर लो ना, तो शुरू में ऐसा झटका सा लगता है, क्या बात कर रहे हो भाई, स्टेट बोर्ड की इमेजिनेशन लोगों के दिमाग में ऐसी होती है, अरे यार वहाँ पे क्या पढ़ाई है। बट लेट मी टेल यू, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड कैलकुलेटिव इन दिस डिसीजन। स्टेट बोर्ड में और CBSE बोर्ड में क्या फर्क होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, PCM का या PCB का सिलेबस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल when you look at the books, you'll find they are 90% similar. तो फॉर एग्जाम्पल स्टेट बोर्ड में कुछ पोर्शन आ रहा है, CBSE बोर्ड में कुछ पोर्शन आ रहा है, सब में काफी कुछ सिमिलरिटी है, थोड़ा इधर ज्यादा थोड़ा इधर ज्यादा, ऐसे चलता रहता है। All of them are almost similar. But when you are preparing for competitive exam, understand that कि हम ना CBSE के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, ना ICSE के हिसाब से, हम ये पूरा रेक्टेंगल कवर करते हैं बाहर। तो आप किसी भी बोर्ड में होंगे, आपको पढ़ाई तो वो पूरी ही करनी है। तो पहली बात, सिलेबस के हिसाब से मैटर नहीं करता है, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, आप कौन से कोर्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिस कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, लेट्स से आपके मेन सब्जेक्ट PCM या PCB है, तो व्हाट अबाउट दी अदर सब्जेक्ट, वो अदर सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? उन सब्जेक्ट्स में हमें ये बताइए टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़े या ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, बताइए मुझे चैट में लिख के बताइए। अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं, PCM और PCB हमारे मेन फोकस है, तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? टाइम कम लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए? लेस। वेरी नाइस, थैंक यू, एवरीवन इज वेरी क्लियर, लेस सबने लिख दिया, आई एम सो हैप्पी। नाउ टेल मी, टाइम उसमें लेस लगना चाहिए पर मार्क्स भी उसमें लेस आने चाहिए क्या? मार्क्स लेस चलेंगे आपको बोर्ड में? इंग्लिश में मार्क्स लेस चलेंगे बोर्ड में? मार्क्स कैसे चाहिए, मोर या लेस? मार्क्स कैसे? मोर। सब चला के सबको पढ़ाई सबको ध्यान रखिए,
पढ़ाई सबको कम करनी है पर सबको मार्क्स पूरे चाहिए. सो दैट इज व्हाई दिस कोर्सेज यू हैव टू अंडरस्टैंड. जो स्टेट बोर्ड के लिए जो सब्जेक्ट्स आते हैं, लेट्स से इंग्लिश आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, दीज आर सब्जेक्ट्स और कोर्सेज फॉर स्टेट बोर्ड. दे आर डिजाइन फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स. इनमें पढ़ाई कम होती है. सीबीएसई आईसीएसई में क्या होता है, बच्चे को इंग्लिश वगैरह के लिए अलग से ट्यूशन लगाने पड़ जाते हैं. बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, उसका टाइम वेस्ट होगा, उसको दिक्कत आएगी. और ध्यान रखिए, इस दिक्कत का कोई एडवांटेज उसको नहीं अचीव होने वाला. उसका जो भी सिलेबस आएगा, जो भी पोर्शन आएगा, वो एनटीए के थ्रू डिसाइड होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. उसका किसी बोर्ड से कोई लिंक नहीं है. ये बहुत पहले का ख्याल होता था कि सीबीएसई बोर्ड बेस्ट बोर्ड है क्योंकि वो पेपर कंडक्ट करता है. नो नो नो, बहुत पहले भी सीबीएसई बोर्ड से पेपर कंडक्ट करते थे. कंडक्ट करते थे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर्स डिसाइड करते थे, पेपर्स की प्रिंटिंग कराते थे, पर पेपर वो सेट नहीं करते थे. पेपर कभी भी इससे सेट नहीं होते. ऑल्सो कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है स्टेट बोर्ड में कंपलसरी मराठी पढ़ना पड़ेगा. नहीं, वी हैव अदर ऑप्शंस. अदर ऑप्शंस आर देयर. कंपलसरी मराठी भी नहीं. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जितने भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, ये सब का जो डिफरेंट सिलेबस है, एनटीए ने अपना एक सिलेबस डिफाइन किया. हमें वो सिलेबस प्रिपेयर करना है. वो सिलेबस बाकी सब बोर्ड्स के सिलेबस को मिला जुला के एक बड़ा सिलेबस बनाया. जब आप पूरे सिलेबस की तैयारी करेंगे, आपको सिलेबस के टर्म में कभी कोई बेनिफिट या कोई नुकसान होने वाला नहीं है, चाहे आप कोई भी बोर्ड ले लीजिए. बेनिफिट और नुकसान कहाँ होता है, लेट मी टेल यू. जो आपके क्लास 11th एंड 12th के जो अदर सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट आपका टाइम लेंगे, आपसे एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए बोलेंगे, आपको उसमें दिक्कत आएगी. उनकी बुक्स में, एक बुक आपने इंग्लिश की देखी, सीबीएसई में इतनी बड़ी बुक है, आपके स्टेट बोर्ड में इतनी छोटी सी बुक. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बच्चा टाइम सेव करेगा. इसीलिए क्लास 10th तक जो बच्चे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में होते हैं, वो इमीडिएटली स्विच ओवर करके पेस के थ्रू पेस जूनियर साइंस कॉलेज में आते हैं. हमारे जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, वो सब के सब स्टेट बोर्ड के थ्रू होते हैं क्लास 12th के लिए. ये वही बच्चे हैं जो क्लास 10th तक आईसीएसई वगैरह में रहते हैं. ऑल्सो ध्यान दीजिए, पेस जूनियर साइंस कॉलेज में जब बच्चा होता है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह की तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते. हम सिर्फ उसको किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते. लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट. हमारे फेस्टिवल होते हैं. वी हैव अ फेस्टिवल कॉल्ड योस. तो इस साल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, वी अंडरस्टैंड दैट, बट हर साल हमारा एक फेस्टिवल होता है योस. स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है. वी हैव अ कल्चरल फेस्टिवल. वी हैव ड्रोन मेकिंग, स्टार गेजिंग वर्कशॉप्स. ऑल दीज थिंग्स वी डू टेक केयर. हमारे हिसाब से बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनेगा, हम उसके पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सब ध्यान रखेंगे. आप एक बार अपने कॉलेज जाएंगे, यू विल फाइंड दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आर देयर, बेस्ट टीचर्स आर देयर. हम लोग बच्चे की पढ़ाई और उसके डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान देंगे. लेकिन साथ साथ स्टेट बोर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट भी हम लोग अवेल करेंगे. क्या? द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स डू नॉट कंज्यूम दैट मच टाइम. दे आर इजियर टू हैंडल. दे कैन गिव मी मोर मार्क्स. एंड व्हाई आर मार्क्स क्रूशियल? लेट मी आल्सो टेल यू. इस साल बहुत सारे कॉलेजेस सिर्फ बोर्ड के मार्क्स पे एडमिशन दे रहे हैं, बोर्ड की परसेंटाइल पे. तो अगर आपके अपने परसेंटाइल पे रैंक अच्छी आई हुई है अपने बोर्ड से, तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज होता है. तो मुझे खुद बताइए, कौन से बोर्ड आपके 93% मार्क्स आए? 93% मार्क्स सीबीएसई में और 93% मार्क्स स्टेट बोर्ड में. कौन से परसेंट, किस बच्चे की रैंक ज्यादा अच्छी होगी? ऑफकोर्स स्टेट बोर्ड. क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपका जिनसे कंपैरिजन हो रहा है, वो बच्चे कोई विदर्भ से है, कोई अकोला से है, कोई कहीं से. देयर आर मेनी विलेजेस जहाँ से बच्चे आ रहे हैं. वहाँ स्कूल है तो टीचर नहीं है, वहाँ टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो बुक्स नहीं है. आपको पेस जूनियर कॉलेज के टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट टीचर. आपकी बोर्ड में परसेंटेज हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि बेस्ट है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स हमें बोर्ड के रिजल्ट भी तो दिखाने हैं. अंडरस्टैंड दैट यू विल बी गिवन बेस्ट. Understand that you will be given the best. You will be given the best of the best teachers. The others do not get that. आपकी बोर्ड्स की परसेंटेज बेटर रहेगी, आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा उन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स. आपका काम सबका सब उसमें निपट जाएगा. सो फॉर दैट डेलिबरेट रीजन वी हैव चोजन स्टेट बोर्ड फॉर दिस 3-year कोर्स. ऑल्सो जो बच्चे ये सोच रहे हैं मैं सीबीएसई के साथ 3 year कर लूंगा, मैं किसी और के साथ क्लियर कर लूंगा, आप 3 year मत करिए. If you are this doubtful about this 3-year courses, I'm very clear that I want to go to the best college. I want to achieve my dream. I want to do it. Note that these CBSE, ICSE and these boards will only serve as distractions. You will get your best percentage in your state board also. With state board, options are open to go abroad also. वो जमाने चले गए, लोगों को ऐसा लगता था कि स्टेट बोर्ड से हम बाहर जब एडमिशन लेना चाहेंगे तो सीबीएसई ज्यादा वेलकम होता है. ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं. इस साल भी कितने सारे बच्चे अब्रॉड गए हैं, सब बच्चे वो स्टेट बोर्ड वाले. एवरी यू कैन सिंपली गो टू द पेस वेबसाइट एंड सी. वी दिस ईयर आल्सो अबाउट 70 to 80 students of ours have gone abroad for their further studies. Understand that it doesn't matter you are from state board or which college. What matters is your percentage is better. What matters is your marks are better, your rank is better.
Does PACE also help prepare for SAT? And yes, we do prepare, and PACE has very good course which can combine both SAT preparation as well as JEE preparation also. So for PCMB, what are the other subjects? Preeti ma'am, what are the other subjects for PCMB? We have psychology. Yes. Yeah, so when it comes to the maths combination for engineering students, we have physics, chemistry, maths, compulsory subjects. English is a compulsory subject. And they have to select from one bifocal subject, which is electrical maintenance or computer science. Now, both are on a scale of 200, wherein more than 50 marks are internal marks, practical marks in the hands of the college. So that becomes very scoring in nature and is a very popular combination for students. And for medical students, we have physics, chemistry, biology, English as their compulsory subjects. And then they have psychology and IT. So psychology only has 8 topics based on human anatomy, becomes, pretty easier for them to cover. 8 topics is nothing in comparison to the load they're doing. So point is, the subjects we have chosen are understanding the fact what our students are doing and what kind of level of preparation they are into. So all these subjects are very scoring in nature. Hindi we have as an optional subject. Of course, that's a very small percentage of students today who opt for Hindi as a subject. For 11th and 12th, for this course, you have to join PACE Junior College only. और किसी के साथ ये चल नहीं पाएगा. No, even for state board, only PACE Junior College, no other. As sir kindly clarify. Is PACE Junior College properly affiliated to state board? Were there any issues? No. We have been affiliated with state board for last 13, how many years now? Now 10 years, sir. Now 10 years. 10 और years. आप सिंपली टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह कहीं पे भी आप गूगल करके देख लीजिए, हर साल स्टेट बोर्ड के टॉपर PACE जूनियर कॉलेज से निकलते हैं. लॉ मेकर्स वगैरह के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं. वी हैव हैड डिग्निटरीज जिनके बच्चे PACE जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं और पास आउट होते हैं. सो वी आर देयर इज नो एनी शेडी बिजनेस और एनीथिंग. वी आर परफेक्टली अलाइंड विद इट. हमारे एडमिशंस भी हम लोग नहीं करते हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू एडमिशंस होते हैं. फॉर दैट योर क्लास 10th percentage will enable you to choose PACE Junior Science College. And let me tell you, to take admission in PACE Junior Science College, it is usually not that easy. I'll tell you. Sir, if I can add here, this year the first merit list had come out. So as usual, every year we are the highest cutoff for Science College. 96.8 was the cutoff of the first merit list. For PACE Junior Science College. Yes. Now, this is the slightly daravna news. Now it is the better news. Lekin this year we have seats increasing. Seats increase हो रही है. Also, for PACE Junior College Andheri, this the first cutoff list was 96.8, which was highest among all the colleges of Maharashtra. Then the second list comes, then third list comes, और धीरे धीरे करके जो बच्चों की थोड़ी कम परसेंटेज भी आती है उनको मिल जाता है. सेकंड चीज ऐसी है कि for Andheri and for college the cutoff is very high, but for the other colleges the cutoff is not that high. मतलब 85-80% तक भी I think admissions are possible, so you don't have to worry. Also, when you are in a 3-year course, don't worry, we will take care of, even if your board percentage is not that good, something can be done. Sir, why? Yes. Let me see. Sir, in IGCSE, we have 3 prelims. How can these people attend lectures and get ready for prelims exam? How many days will be holiday for prelims? देखिए, हर कॉलेज का, अब तो मैं बताता हूँ, प्रीलिम्स वर्ड जो है ना, एक ऐसा इतना लूजली सब लोग प्रीलिम्स वर्ड बोलते हैं. अब तो हमारे टाइम पे स्कूल्स के प्रीलिम्स होते थे. उसके बाद जमाना आ गया कोचिंग क्लासेस अपने प्रीलिम्स रखने लगते हैं, और अब ट्यूशन टीचर सब लोग अपने प्रीलिम्स रखते हैं. तो एक देखा जाए तो हर बच्चा प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स देता रहता है. उसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो दिसंबर टाइम वाला प्रीलिम्स होता है, सब बच्चे उसको बहुत अच्छे से देना चाहते हैं. तो उस वक्त आपको डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू दोस हॉलिडेज. वी विल गिव यू दैट टाइम. वी विल नॉट क्लैश आवर लेक्चर्स एवरीथिंग. ऑल्सो ध्यान दीजिए, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं ना वो संडे को होगा, हफ्ते में एक दिन होगा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा. ऑल्सो अगर जिस दिन क्लैश भी हुआ है उस दिन के लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे ताकि आप बाद में भी देख सकते हैं. You have full week to watch that recording and come to the teacher and discuss your doubts. So even if your exam is clashing, you can still cover it up. It's not a big deal. How many students per batch in 11th and 12th? It depends whether you are in 3-year batch or in a regular batch. In a regular batch, you have 50 to 55 students in one batch.
But in a 3-year batch, the number of students can be lesser also, more also, depending on the quality of students we get through these exam. इस एग्जाम में जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उस हिसाब से डिसाइड होगा. अगर हमें सिर्फ 4-5 बच्चे अच्छे मिले, हमारे लिए 4-5 ही चले, हमें कोई दिक्कत. Yes. Any other doubt? Exam is on the next Sunday. Yes, exam is on the coming Sunday. Sir, if we get this 3-year course, we will get admission in Pace Junior College. Actually, मैं बताता हूँ, सुनिए, समझने की बात थोड़ा समझने की कोशिश की. आपका एडमिशन 3-year कोर्स में हो गया ना, ये इसी बात का सबूत है कि आप होशियार हैं. और अगर आप होशियार हैं ना, तो आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी पेस जूनियर कॉलेज में एडमिशन के लिए. हर साल 3-year कोर्स में जो बच्चे आते हैं उनकी ऑटोमेटिकली परसेंटेज इतनी अच्छी होती है कि उनके एडमिशन हो ही जाता है. तो जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है ना मेरा 3-year कोर्स में सिलेक्शन हो गया पर मेरा पेस जूनियर कॉलेज में नहीं हो रहा, वो अजीब सी चीज सोचता है. इट्स लाइक वर्ल्ड कप जीत गए और मोहल्ले का क्रिकेट मैच हार गए. So you have to understand that if you are able to qualify for Pace Junior College, sorry, I mean 3-year batch, then surely you will get that percentage. आपकी 91-92% आएंगे बोर्ड में, इतना तो आएगा ही. और we do have certain management seats also, so you will be able to get admission in our Pace Junior College without any worry or without any running helter and skelter anything. आराम से आपका एडमिशन हो ही जाए. Yes. Sir, is the one you are talking about different from Pace Junior College tie-up with the school? No, no, no. First of all, we are not talking about any integrated tie-up. हम किसी tie-up की बात नहीं कर रहे. We have tie-ups with Podar Junior College, Podar School. We have, ma'am, do we have any other tie-up right now apart from Podar? No, sir. No. We have only tie-up with Podar. Podar is a CBSE school. But with Podar also, we cannot run this 3-year course at all. Understand that for this 3-year course, we want complete control in our hands. Everything in our hands. इनकी हर चीज, हर प्लानिंग, हर सिस्टमेटिक जो भी इनका लेक्चर शेड्यूल होगा वो सब प्लान करेंगे. और लेट मी टेल यू, वो प्लानिंग भी पेस से ज्यादा वी HODs वी आर पर्सनली इन्वेस्टेड इन. ऐसा नहीं है कि दिस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ ग्रुप जिसके हमें हर बच्चे के हिसाब से देखना होगा इसको क्या रिक्वायरमेंट. इस बच्चे के लिए हम किसी टाइप वाले के साथ वाले स्कूल में बिठा के उसको अलग से नहीं करवा पाएंगे. उस स्कूल के अलग एग्जाम्स आएंगे, उस स्कूल का अलग प्रिपरेशन शेड्यूल चलेगा. हमें पूरा कंट्रोल 3 साल तक हमारे हाथ में चाहिए. ऑल्सो गोइंग फॉर अ टाइप और गोइंग चूजिंग सम अदर कॉलेज एंड देन कमिंग टू पेस फॉर दीस लेक्चर्स विल नेवर वर्क. आई टेल यू व्हाई इट डजंट वर्क. स्कूल में एक अलग एग्जाम चल रहा है. स्कूल में फॉर एग्जांपल मैथ्स पढ़ाया जा रहा है. मैथ्स में स्कूल में एक चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं. कोचिंग में वापस 2 चैप्टर चला रहे हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4. इनका अपना सिलेबस चल रहा है जो जेई के लिए फॉलो हो रहा है, इनका अपना सिलेबस चल रहा है जो बोर्ड्स के लिए फॉलो हो रहा है. ये अलग अलग स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, ये अलग स्टाइल से पढ़ा रहे हैं. अल्टीमेटली बच्चा टोटल मिला के कितने चैप्टर चला रहा है एक ही सब्जेक्ट में? 4 चैप्टर चला रहा है. तो 4 मैथ्स में, 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 12 चैप्टर. 12 चैप्टर का होमवर्क मिलेगा उसको आरफ. आपको लगता है 12 चैप्टर का होमवर्क बच्चा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा. When the child is with Pace Junior College, what is the benefit? Simple benefit. मैथ्स में जो चैप्टर चलने वाला है C1, वही चैप्टर उसको बोर्ड्स के लिए कराया जाएगा और वही चैप्टर उसको जेई के लिए कराया जाएगा. इट इज द सेम चैप्टर, सेम चैप्टर. उसी चैप्टर को हम थ्योरी वाइज पढ़ाएंगे, उसके असाइनमेंट थ्योरी वाला असाइनमेंट होगा, उसी चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से कराएंगे. बच्चा एक बार में एक चैप्टर करेगा और वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई चलेगी. सो दिस इज हाउ वी डू. बच्चा परेशान नहीं होगा मैं 3-4 चैप्टर का होमवर्क जगल कर रहा हूँ. इन 3-4 चैप्टर के चक्कर में एक ना एक चैप्टर तो खराब होना ही है. यस सर, इफ वी गेट्स गुड स्कोर इन वन सब्जेक्ट बट अदर्स गोज रॉन्ग इन द एस ऑफ पेस एग्जाम. इन एस ऑफ पेस इंजीनियरिंग एग्जाम ओनली मैथ्स इज देयर. इन एस ऑफ पेस मेडिकल यू विल हैव PCB, राइट प्रीति मैम? Yes, that's correct, sir. तो तीनों में आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे आने चाहिए तब आप क्वालिफाई करेंगे. So this is important to maintain the advantage in enhance the same. Your voice not clearly audible. Am I audible? Yeah, you are audible, sir. Okay. Exam date is too close. Less time for preparation. That is deliberate. We do not want. We want real good students. We do not want those students जो पढ़ाई करके जल्दी पढ़ाई करके अच्छे से पढ़ाई करके मार्क्स अच्छे ले. हमें वो नहीं चाहिए. हमें वही बच्चे चाहिए जो नेचुरली अच्छे. प्लीज. तो इसलिए डेलिबरेटली एक ही हफ्ता आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया.
आपको मैं बताता हूँ, हमारे इस AOP वाले एग्जाम के लिए देयर आर मेनी कोचिंग क्लासेस हु आर टीचिंग फॉर आवर AOP एग्जाम. वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट मैन्युफैक्चर्ड इंटेलिजेंस, वी वांट रियल इंटेलिजेंस. इसलिए जानबूझ के एक ही हफ्ता दिया गया. आपको कोर्स बता दिया जाएगा, आप उस कोर्स को इस एक हफ्ते में प्रिपेयर कीजिए, दैट्स ऑल. उससे ज्यादा जरूरत नहीं है. आइडियली यू शुड नॉट स्टडी फॉर योर AOP. चाहे खराब हो रहा है होने दीजिए, वो आपको पता चलेगा, वही तो अच्छा है. यू वांट टू गेट एडवाइस फॉर कि मेरे को कितना अच्छा हो रहा है. पर ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं मना भी करूंगा तो भी आप पढ़ेंगे तो ही. एक हफ्ता पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत. हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड वुड इट बी ऑनलाइन? देखिए कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन तो अभी आपको रिवील नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल एक सीक्रेट इन्फो. क्वेश्चन आपको एक सैंपल पेपर जरूर दिया जाएगा. सैंपल पेपर यू कैन टेक एंड यू कैन अटेम्प्ट दैट सैंपल पेपर. उस फॉर्मेट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स टोटल सीक्रेट. हम ये जज करना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा पेपर के वक्त जाके उस सरप्राइजिंग पेपर को देख के पजल हुआ, कौन सा नहीं हुआ. तो प्लीज लेट इट बी लाइक दैट. So there are school exams going on. So is ASOPACE mandatory to crack for this course? Yes, it is mandatory to crack for this course, unless there are some. After class 9th, you are there. Class 8th, Pritiman, there are some options for direct admissions for based on class 8th and 9th result and our FB result, right? Yes, we do have. So 90% in their science, maths and science. Okay, so any student 90% plus. So any student who is eligible based on his past performance in medals and some certificates he has won in some exams, Yes. they can contact Preeti ma'am directly, and that can be done. And I would recommend that test is taken. Yes, test will of course be online. We will not conduct offline test. It will be an online test. There will be a proctor जो बच्चे को देख रहा होगा, जब बच्चा टेस्ट दे रहा होगा, तो बच्चा चीटिंग नहीं करता. What is the cutoff? What is the cutoff for this examination of ASOPACE? See, cutoff depends on the paper toughness. If the paper is really tough, the cutoff will be high. If the paper is not that tough, the cutoff will be lower. If paper is really tough, cutoff will be lower. If paper is easy, the cutoff will be higher. It depends on that. Ideally, हमने ये देखा है कि उस ASOPACE एग्जाम में 25 to 30% मार्क्स लाने वाले बच्चे, 35% मार्क्स लाने वाले बच्चे यूजुअली अच्छा करते हैं. अच्छा, हाँ, एक चीज और, आप जब ASOPACE का एग्जाम देंगे तो घबराइएगा नहीं. ये लाइफ का पहला ऐसा एग्जाम होगा आपका जिसमें आप इस तरह का पेपर देने वाले हैं. इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे. आपके मार्क्स ये बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है कि सबके फुल मार्क्स आ रहे हैं, वो नहीं है. Last year in our ASOPACE exam, the child who scored 75% marks was topper. This was last year. 75% वाला टॉपर था. आप समझ सकते हैं पेपर उसी. तो अगर किसी बच्चे की इवन 30% मार्क्स भी आते हैं ना, तो उसकी परफॉर्मेंस कई बार बहुत उस लिस्ट के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से अच्छी मानी जाती है. तो इट इज ऑल रिलेटिव. यू शुड नॉट अज्यूम दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 98-99% मार्क्स. ये मजाक वाला टेस्ट नहीं है, ये आपका असली टेस्ट है. ऑल्सो एक चीज मैं बताता हूँ, जिस बच्चे ने बचपन से लेकर अब तक डिसेंट सीरियस पढ़ाई की है, उस बच्चे को अलग से दोबारा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे. अब फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, सर्कल का एक सेक्टर दे दिया, उसका एरिया निकाला मैथ्स वाले से. अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं अरे मैं तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला ही भूल गया. कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें भूलने ऐसा क्या है, तो ऑब्वियस. तो जो वो बच्चा बोलता है तो उसका भी तो हो ही जाएगा, इजी है, वो वाला बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है यूजुअली एग्जाम. व्हाट इफ द स्टूडेंट गेट्स गुड मार्क्स ओनली इन मैथ्स एंड बायो? मैथ्स वाले पेपर में भी अच्छे मार्क्स आ गए और बायो वाले में भी आ गए. तो अगर किसी बच्चे के मैथ्स और बायो दोनों में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उस बच्चे का दोनों ही पेपर अच्छा हो गया, उसका इंटरेस्ट भी दोनों में ही है, तो फिर कॉइन टॉस कर ले. हेड्स आए तो इस फील्ड में चला जाए, टेल्स आए तो उस फील्ड में चला जाए. सर, इफ एनीवन, what if there are extracurricular activities are there? We have cricket matches, we have football matches, we have football tournament, we have kite flying contest, we have drone making workshop, we have stargazing workshop, we have presentations, we have singing, dancing, debating, dramatics, everything is there. All extracurricular activities. Sir, will there be more tests after next Sunday? Now see, let me tell you why should you take the test next Sunday and why should you not wait. Some people might think कि मैं next test बाद में दे दूंगा, अभी तो wait कर लेते हैं. Let me tell you why it won't serve good. 18th is your test, right? Your first session is starting from 25th of October. That is your first session. The students who are eligible on 18th can take admission and start their lectures from 25th October. यहाँ से शुरू कर सकते हैं.
नाउ 18th के बाद जो हमारा अगला टेस्ट होगा, द नेक्स्ट टेस्ट विल बी मैम आफ्टर 15 days, राइट? Yeah, the next is on 25th 25th of October. Okay, so the child Yes. who's taking 25th October ka test, that child will be missing 2 lectures. Yes, sir. So we will be missing 2 lectures. It is not advised कि आप एक वीक के लालच के चक्कर में 2 लेक्चर मिस कर रहे हैं, श्री गणेश ही गलत हो जाएगा। इट इज मच बेटर आप 18th को टेस्ट दीजिए, 18th को टेस्ट देने के बाद आप ज्वाइन करिए, फिर यू स्टार्ट। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर मुझे टेस्ट देने में दिक्कत है, स्टिल यू कैन स्टार्ट द कोर्स बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस इन आवर एफबी एग्जाम और योर स्कूल एग्जाम्स परफॉर्मेंस, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के स्कूल एग्जाम चल रहे हो, तो इफ द चाइल्ड इज रियली गुड, द चाइल्ड बिकम्स ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर दिस कोर्स without taking the test. For that you will have to contact PT ma'am, but I advise कि टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट देने के बाद सीधा इस कोर्स में स्टार्ट कीजिए। Sir, what if we can move both PCB? Yes, you can. The child can take both exam also, PCM and PCB. AOP maths you can take. Yes. Yes, they can. Yes, they can. And They can take both the entrance exams. This is for medical. This is for engineering. ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग के लिए हम सिर्फ मैथ्स टेस्ट करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री टेस्ट नहीं करेंगे। मेडिकल के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें टेस्ट करेंगे। Will the test be there on Panacea? You will be given link for the test and you will start the test according to the time. वो सब मिलेगा, that will be there. They will receive all the details post the registration for the user Okay. ID, password, Now, login for the test. Some student has asked, sir, what is the difference in teaching methodology of PACE versus the rest? किसी बच्चे ने पूछा या पेरेंट ने पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे ने पूछा तो मुझे बड़ी खुशी है, बच्चा काफी मोटिवेटेड है। ओके, सो लेट मी टेल यू, देखिए आमतौर पर सब लोग यही बोलते हैं कि हम बेस्ट टीचर है, हम बेस्ट टीचर है। आपको लगता है हाँ सभी ये बात बोल रहे हैं, सब तेरे बेस्ट टीचर, हर कोई बोल रहा है बेस्ट टीचर, ये पता कैसे चलेगा कौन बेस्ट टीचर? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल से तरीके हैं। आजकल कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। If someone says I am the best teacher, ना, you ask him give me your name, आप नेम ले लीजिए और नेम को सीधा गूगल पे डाल लीजिए। तो I say that I am teaching maths, people usually say I am a good teacher, so this is my name, I am going to teach you maths. Okay, so simply just put my name on Google, you will get everything. So first of all, don't just believe anything, you check about it. One, second चीज है, understand that teaching methodology जो बेस का है और जो बाकी है, हमें जमीन आसमान का फर्क है। I'll show you some things if I can collect, just a second. I might have. Okay. Now see, क्या होता है कि आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता है तो मैं अच्छा टीचर हूँ। पेस के टीचर्स हम ये बात बिलीव नहीं करते कि मुझे मैथ्स आता है तो मैं मैथ्स का अच्छा टीचर हूँ, ऋचा मैम को बॉटनी अच्छा आता है तो ऋचा मैम बॉटनी की अच्छी टीचर है। नहीं, ये रीजन नहीं। नॉलेज बहुत लोगों में हो सकती है और उस नॉलेज को बच्चे के लेवल पे उतरकर बच्चे के एंगल से समझाना, वो अच्छा टीचर है। किसी भी टीचर के लिए बेस्ट क्वालिटी क्या होती है? व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी दैट वी सर्च फॉर अ टीचर इन दिस? व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी? व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी वी शुड हैव? टेल मी, गिव मी सम आंसर्स इन चैट। व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी? व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी अ टीचर शुड हैव? फ्रेंडलीनेस, नाइस, मेक अस अंडरस्टैंड, वेरी नाइस, सिंपलिसिटी, वेरी नाइस। ओके, आई विल टेल यू द बेस्ट क्वालिटी। Best quality is patience. You need patience. बच्चा आपके सामने डाउट लेके आया, आपने डाउट देखा, आपका एक जरा सा रिएक्शन उसका दिल तोड़ सकता है। आपने डाउट देखा, आपको ये डाउट आप इतने साल से हर बार पढ़ा, हर बार बोल रहे, आपने डाउट लिया, आप ऐसा बोल दिया ना, क्लास में कराया तो था यार, ये जो जरा सा ऐसे करके रिएक्शन दिया ना आपने, ये रिएक्शन, अंडरस्टैंड दिस, ये रिएक्शन आपका सबका दिल तोड़। बट अंडरस्टैंड दिस, आपने बच्चे को लाए, बच्चे ने कहा ये डाउट है, आपने उसको देखा थोड़ी देर, ओके बेटा ये तो टफ क्वेश्चन है, ये तो मैं भी अटक गया था, इसको तो ऐसे ट्राई कर, ऐसे ट्राई कर। आपने थोड़ी देर बच्चे के साथ वो स्ट्रगल करके देखा, बच्चे को लगा कि हाँ मैं और आप एक जर्नी पर जा रहे हैं, और आपको पता था किस जर्नी के थ्रू आंसर आएगा। आपने उससे गलत बात की है, वो करके देखो उससे आंसर आ रहा है, सर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा हाँ सर ये मेथड तो तब लगाते थे, ग्रेट ग्रेट गुड, इससे ट्राई कर। यू हैव टू प्ले अराउंड। ये जो पेशेंस है ना, दैट मेक्स अ गुड टीचर। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, बच्चे के एंगल पे जाने का क्या क्या फायदा होता है, क्या चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इफ आई एम एबल टू शो यू,
just okay. So see, if I am able to show you in a while, just a second. Let me show you something on screen. Okay. So see class here. Look at this class. Can you see this integration? Are you able to see this, the screen class? Everyone is able to see the screen? Okay. Now see, देखिए screen पे ये screen पे, as you can see, this is what a teacher is writing about. This is the mathematics lecture. Okay. Are you able to read what is written? Give me, say yes or no if you're able to read it properly. Yes, sir, we can. Okay. So are you able to read? Do you see that the way teacher is presenting the lecture? Right now, आप समझिए, when the lecture is conducted online, it is not just about the teacher knowing the stuff. Do you feel that this is a good type of presentation skills while the teacher is writing? No. Almost everyone is saying no. Now look at this. How I'll show you the lecture of mine. See this lecture. Okay, now look at this. Now class, what do you feel about this lecture? This lecture. This is the same maths only, same subject. What do you feel about this? Tell me. What do you feel about this? Correct? It is easier to आप टीचर को ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ लिखना नहीं है बोर्ड पे, बच्चे को समझ में भी आना चाहिए ये हम क्या कर रहे हैं. हम लोग के पास स्पेस में जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग के पास कहते हैं सुपर पावर है. हम लोग बच्चे के एंगल पे जाके, बच्चे की तरफ जाके, बच्चे की तरफ से सोच पाते. आमतौर पर लोगों को लगता है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बोर्ड पे कैसा भी लिख दीजिए हो जाएगा. ये नहीं, ये बहुत क्रूशियल है. आपने किस तरह कैसे एम्फेसाइज किया, किस क्वेश्चन को एम्फेसाइज किया, वो बहुत क्रूशियल है. बच्चा उसी से उसकी क्लैरिटी बनेगी. अच्छा ये चीज मुझे समझनी है, ये चीज छोड़नी है, ये इतनी जरूरी है, ये इतनी जरूरी नहीं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट a teacher at pace का सबसे बड़ा क्वालिटी ऐसा है that teachers have patience and they are able to go down to the level of कि बच्चा कैसे सोचता है. फॉर एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जो बहुत परेशान करता है यूजुअली बच्चों को. इस सर उसमें इतनी सारी चीजें याद करनी होती है. सर देयर आर 100 कंपाउंड्स, हर कंपाउंड का अलग अलग कलर है. एक रेड है, एक चेरी रेड है, एक क्रिम्सन रेड है. सब कैसे याद करेंगे? हर बच्चा पजल हो रहा है. 100 कंपाउंड से सबके कलर अलग अलग याद करने. एंड इट इज जस्ट अ वे टू लर्न हाउ. कैसे याद करना है? बताइए कैसे याद करना है. आई टेल यू द स्ट्रेटजी व्हाट वी डू. सिंपल सा स्ट्रेटजी है. हम बच्चे से बोलते हैं बेटा बुक जब आप रीड कर रहे होंगे तो पेंसिल कलर खरीद लीजिए. जैसे ही उस कंपाउंड का नाम देखें, उस कंपाउंड के नाम के ऊपर वो कलर कर दीजिए. अगर वो ब्राउन कलर का है तो ब्राउन कलर कर दीजिए, वो ग्रीन कलर का है ग्रीन कलर कर दीजिए. जब जब आप बुक रीड करेंगे वो कलर करते जाएंगे. धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वो कॉपर सल्फेट कंपाउंड का कलर वो ब्लू ही दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि हर बार उसने ब्लू कलर में देखा. इससे बेनिफिट क्या होता है, बच्चे को एफर्ट कम लगाना पड़ेगा. हाउ डू दी अदर्स आस्क चाइल्ड टू लर्न? दे गिव हिम अ शीट, बिग शीट. बच्चा दिन भर रामायण की तरह से 2-3 दिन तक वो रामायण की शीट रटता जा. और हम क्या कहते हैं, बिल्कुल शीट की जरूरत नहीं है. जैसी कंपाउंड देखे बुक में, जब आप बुक रीड कर रहे हैं बस कलर करते हैं. बच्चा कलर करता जाएगा अपने आप उसको. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज अ गुड आइडिया? रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? तो ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी, हम लोग इस स्ट्रेटेजी के लिए जाने जाते हैं. आप लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट देखिए तो सब जगह के टॉपर सब जगह होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एक जगह के टॉपर बच्चे ने बोला कि मैं 15 घंटे पढ़ाई करता था डेली. एंड हिज टीचर आल्सो पोस्ट प्राउडली इन फ्रंट ऑफ हिम कि मैंने अपने बच्चे से 15 घंटे पढ़ाई की, तब मेरे बच्चे 100% आए. दूसरे वाले बच्चे ने बोला मैं 16 आवर्स पढ़ाई करता था. वो और प्राउड है, वो 2 थम्स अप देता है. आपको पता है उसी के साथ पेस के बच्चे का इंटरव्यू था, उसकी भी 100% मार्क्स आए जेईई में.
उसने कहा मैं डेली 4 से 5 घंटे। किस बच्चे ने लाइफ को बेटर एंजॉय किया, 14-15 आवर्स वालों ने या 4 से 5 घंटे? खुद बताइए, विच वन? 4 to 5। क्योंकि पढ़ाई का तरीका, टीचर का काम ऐसे ही है कि बच्चे का काम कम करे। बच्चे के पास, टीचर के पास एक ही सब्जेक्ट है, बच्चे के पास 3-3, 4-4 सब्जेक्ट होते हैं कई बार। हमें ऐसा करना है कि मैं पहले से आपके लेक्चर के पहले मैं इतना होमवर्क करके लाया हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने पहले ही वो स्क्रीनशॉट वगैरह रेडी रखे थे, मुझे पता था लोग ये सब बातें पूछेंगे। आई डेलिबरेटली केप्ट दो स्क्रीनशॉट। वो किसी और टीचर का स्क्रीनशॉट था जो किसी और क्लासेस में पढ़ाते थे, जिसकी खराब हैंड राइटिंग थी, मैं बताता नहीं उसका नाम, लेकिन ध्यान दीजिए मैं पहले से वो होमवर्क किया है। मैं वो होमवर्क करके लाया हूँ ताकि आपको वही चीज जल्दी समझ में। दैट होमवर्क, दैट पेशेंस वी हैव, एंड दैट इज व्हाई वी आर गुड। Everyone can claim I have the best knowledge, everyone can claim मेरे स्टूडेंट्स ये वो, लेकिन जो पेशेंस और बच्चे की एंगल से सोचने की आर्ट हमारे पास है वो कहीं नहीं है। So that is why we feel we are a much better organization than anyone else. Yes, anyone has any other doubt? Yes, tell me. Yes, it should be smart work, not hard work. मजदूरी नहीं करनी है, मजदूरी नहीं करनी है। यस प्लीज मैम ऐड, आई विल मेक यू द को-होस्ट। बायो के लिए भी दिखाइए, जस्ट अ सेकंड, बायो के लिए। yes. Preeti ma'am, you are the host. For bio also, please show. Yeah, no, Richa ma'am will be able to show. She has. Sure, please. Richa ma'am. Yes, ma'am. One second. Actually, I'm using a different device. No problem. So. A lot of students have started messaging me on WhatsApp. Also, sir, after by the time Richa ma'am sets it up, yes, we will be sharing contact numbers of the senior staff members, because there are a lot of queries I can see. Not sure if all queries will get addressed right now. Yes. So those details will be extended in the WhatsApp group of students today itself. For sure. Yeah. Meanwhile, she's setting up. Let me answer a few queries here. Sir, what was the highest rank of 3-year course last year in ITG? Last year, this year it is 34th rank. Last year also was 34. This year 34, 43, 59. All top 100 जो हमारी ranks है वो बच्चे हमारे 3-year course के। Yes. नॉन 3-year कोर्स से भी टॉप 100 रैंक यूजुअली एक आध आती रहती है, पर इस साल 3-year कोर्स सारी रैंक टॉप 100 वाली 3-year कोर्स से ही है। Any other? So excuse me. Yes, ma'am. Yeah, I'm actually using a different device right now, so I'll just show you the image if this is better for your understanding. So when we over here teach biology, we ensure that whenever we are talking about a particular organism, we would show. Ma'am, your screen is not visible. Ma'am, your screen is not visible. Is it okay now? No, I am not. Ma'am, Preeti ma'am, can you see? Just a second. Oh, like this. Okay. Yeah. Is it visible? Yeah, she. Okay. She is showing on camera. Yeah, she is showing another. Okay. Yes. Okay. Yeah, but we get a sense. We get the idea. Yes, we do get the sense. So what I was saying is that whenever we are teaching a particular organism, like in biology, there are multiple, images which we need to show at times, certain videos which would link the child, the better concept, understanding and everything would be there. So this is what we keep on doing, that we would always share certain images which would help in a better understanding of the diagram. We place NCERT diagrams because NCERT diagrams are of absolute importance when it comes to NEET. True. Yeah, so we try to get in those NCERT diagrams also in a better colorful way, and that's how we present it during lectures. So please be rest assured, parents, whatever we have been doing all these years, and we have been always upgrading ourselves, because every year we get a new fresh lot of children who have great knowledge of technology and stuff like that, and we also try to incorporate those things.
मेरे को याद है मेरा इंजीनियरिंग की तरफ जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे बायो से डर लगता था, और बायो से मेरे डर का रीजन ये था, मेरे जो बायो फैकल्टी थे जब वो हार्ट का डायग्राम बनाते थे ना, तो हार्ट उन्होंने तो बनाया होता था हार्ट, पर ऐसा लगता था वो काऊ है। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया वो क्या करना चाह रहे हैं। बट अगर रिचा मैम आपके जैसे टीचर होते तो शायद मैं डॉक्टर भी बन सकता था, मुझे कई बार ऐसा लगता है। लेकिन आई रिमेम्बर मेरा इंजीनियरिंग की तरफ जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था, मैं बायो से डरता था, बायो से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो बच्चे बायो की तरफ जाते हैं वो शायद ज्यादा मेहनत कर देते हैं इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में। आई डोंट नो, आई हैव लेस आइडिया रिगार्डिंग दैट। ग्रेट मैम, सो नाइस प्रेजेंटेशन। सी सिंपल सी बात है, बच्चा आप अभी बच्चा स्क्रीन पे या बाद में आपके जो नोट्स देख रहा है, द चाइल्ड इज लुकिंग एट योर नोट्स, वो अभी आप मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे लिखने का स्टाइल भी देखते हैं। लिखने का स्टाइल टीचर का एम्फेसिस बताता है कि मैंने एम्फेसाइज इस चीज पे किया है, इस चीज पे लेस एम्फेसिस है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज अबाउट सेविंग टाइम। और जब आप स्क्रीन पे अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे, बच्चा भी नोट्स अच्छे से नहीं बनाएगा। नोट्स अच्छे नहीं से नहीं बनाएगा, क्लैरिटी उतनी मिसिंग होगी, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। सो चाहे मैथ्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई शो टू मैथ्स नोट्स, यू कुड इजीली कंपेयर कि फर्स्ट वाले नोट्स में बच्चे ने नोट्स कैसे बनाए होंगे और सेकंड वाले में बच्चे ने कैसे नोट्स बनाए होंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर चीज बच्चे के एंगल से सोचनी होती है। ऑल्सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट okay, so someone is asking that how does it compare with other online see, first of all, let us understand that uh, the results that we have is totally the results that we have, उसका कंपैरिजन हम किसी और उससे कर ही नहीं सकते। पेस की इस साल टॉप 1000 में, इंजीनियरिंग के लिए बताओ, फॉर टॉप 1000 पेस हैज गॉट अराउंड 33 or 34 रैंक, 34 ranks in top 1000. Now 34 ranks in top 1000 is approximately 3 to 4 rank per 100. If you compare any other online institute or anywhere, you will find total 7-8 rank in top 5000. That is the big difference. And those ranks have been accumulated from whole India. They have accumulated those ranks from whole India. पूरे देश में से उन्होंने वो रैंक accumulate करी है lakhs of users के बाद। हमारी जो ranks हैं, our ranks are only from Mumbai. Ma'am, do we have Mumbai result present? I think Dhananjay has. Dhananjay had Mumbai result, right? Okay. When the result also please circulate in the WhatsApp group, the students can easily see. Sir, what was your rank in IIT JEE? My rank was 659. All the lectures will be live. All the lectures will be live. Now someone is asking that which faculties are better, 3-year batch or FB. First of all, you have to understand they are different faculties. They are separate faculties. They are not the same faculty. For 3-year batch, we are the faculty who are for 3-year batch we have the faculty who are teaching IIT JEE or NEET. Those are HODs for the courses that PACE is known for. For FB, we have faculty who take only FB till class 9, 10, 10th foundation. They are very good in their domain, but they do not teach for IIT JEE or NEET. Sir, when will our course be completed? Our course usually gets completed about जो JEE Mains 1 होता है हमारा, जनवरी से पहले अराउंड हमें 5 months के 5 to 6 months का आसपास हमें टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। तो वी डू गेट 5 to 6 months का टाइम फॉर रिवीजन एंड दैट इज एनफ। ध्यान दीजिए, ये क्लास 10th की तरह नहीं होता है कि आपने 1 साल पहले सिलेबस खत्म कर लिया। ये भी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम 1 साल पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे और 1 साल पहले सिलेबस के फिर लास्ट के 1 साल से रिवीजन करेंगे। दैट डजंट वर्क लाइक दैट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली हाउ डज योर ग्राफ ऑफ JEE प्रिपरेशन और नीट प्रिपरेशन गो। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो आपके मार्क्स धीरे धीरे रैंक इंप्रूव होती है, और एक पॉइंट के बाद, एक हाईएस्ट पॉइंट आने के बाद ना, वो फिर गिरना चालू होता है। आमतौर पर आपको प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि आपका JEE इस जगह कंडक्ट हो जाए, JEE और नीट, क्योंकि अगर आपने थोड़ा और डिले किया तो आपके मार्क्स और नीचे आने चालू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बर्नआउट। आपका इंटरेस्ट चला जाता है, आपको चीजें बहुत वो लगने लगती हैं।
ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत क्रूशियल है. दिस इज द ग्राफ दैट यूजुअली फॉलोज. तो वी हैव दिस परफेक्ट टाइम जिसमें हम लोग सिलेबस फिनिश करते हैं. सिलेबस फिनिश खत्म करने के बाद यहाँ पे हमने सिलेबस फिनिश किया, देन वी गिव यू 5 to 6 months फॉर योर प्रिपरेशन, रिवीजन, जिसमें हम रिवीजन कंडक्ट करते हैं. आपका जेई कंडक्ट हो जाएगा, यू विल गेट दैट टाइम. सो डेफिनेटली दिस टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल. अगर आप ये सोचेंगे कि सर लेट मी, अगर आप ये सोचेंगे कि सर मैं 2 साल पहले मैं जेई तैयारी एक पहले कर लूंगा, फिर आपकी मार्क्स जब गिर रहे होंगे ना, उस वक्त आपका जेई कंडक्ट होगा और डेफिनेटली आप अपने हाईएस्ट पॉइंट से बहुत दूर होंगे. सो दिस इज नॉट एडवाइस, दिस इज एडवाइस. सो दिस टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल. सर विल यू टीच फॉर मेंस और एडवांस? एडवांस. सर कैन वी टेक अ डेमो ऑन 25th and then decide? No. The 25th has to be for the students who are crystal clear. They'll come for the test. Sir, one student, we got admission in 3-year batch. Student has to leave school in 10th. No, 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 no. Student does not have to leave school in 10th. 10th वो अपने school से ही कर रहा है. 11th में the child has to leave his school and come for face to face. In 11th he has to leave, not 10th. In 10th में वो अपने school में ही continue करेगा. अपने स्कूल से ही बोर्ड एग्जाम देगा, अपने स्कूल से ही बोर्ड एग्जाम में अच्छी परसेंटेज लाएगा, फिर उस परसेंटेज के बेसिस पे 11th में उसका पेस जूनियर कॉलेज में एडमिशन. 10th में यू डोंट हैव टू लीव योर स्कूल. सर कैन देयर बी अ पीटीएम as it will help us choose our career better? For sure there will be PTM. Yes. Okay ma'am. Ma'am, you are unmuted already. You are the host ma'am, you can unmute yourself. Preeti ma'am, you are host. Yeah, now I am. Thank you. Okay ma'am. Yeah. So sorry. No worries. Yes. So honestly, one demo doesn't work. One demo can be anything. And I don't think one demo can actually give anybody a clear perspective of what you are Correct. inclined towards or not. You guys can, it is for you can have the recording of any lecture if you want. That is okay. So for 12th board PACE Junior Science College, yes, for PACE 12th PACE Junior Science College only. Sir, if we join in 11th, then we'll have the HOD faculty for advanced preparation. हाँ, now sequence. कई पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि बच्चा अगर 11th में आया सीधा तो लगता है वहां पर अच्छे फैकल्टी नहीं मिलेंगे. ऐसा नहीं, मैं आपको ये भी क्लैरिटी दे देता हूँ. ये चीज भी थोड़ी सी इल्यूजन हो जाती है. डेफिनेटली यू विल गेट गुड फैकल्टी देयर एज वेल व्हेन यू रीच इन क्लास 11 और आप 11th के कोर्स में आए डायरेक्टली. नाउ सी, सबसे पहले 11th में जो बैच क्वालिटी है ना, पीयर ग्रुप, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है. इनफैक्ट शुरू के कुछ मंथ तक तो बिल्कुल नहीं रहता. तो बच्चे ने अप्रैल में आया, अप्रैल, मई, जून, ये वो बच्चा है जो डायरेक्ट 11th में आ रहा है. जून, जुलाई में जाके हमारा पहला मेजर टेस्ट कंडक्ट होगा. उसके बाद हम थोड़ी बहुत शफलिंग या कुछ सेग्रीगेशन कर सकते हैं. तो शुरू के 4 मंथ बच्चा एक मिक्स क्राउड में बैठा है, जो बच्चों ने अपने आप एडमिशन लिया है उसके साथ. तो पहली बात तो पीयर ग्रुप पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. दूसरा, उसमें ऐसा रहता है कि अंडरस्टैंड दैट इवन here can be only one head of the department, right? And how many lectures can you take in a week? 12 lectures you can take in a week. 12 lectures means how many batches? 6 batches you can teach. So for sure, you will have a 3-year batch, which means like one batch. So how many batches remain? 5 batches remain. How many batches are formed in total? Total around 10 or 11 batches are formed. Out of these 10, 11 batches, 12 batches, these batches, understand that only 5 of them will be able to get the same thing. So for 3-year batch, it's a guarantee. For the other, it depends on कौन से बैच में है, आपने कब ज्वाइन किया है, आपने अप्रैल में ज्वाइन किया है कि मई में ज्वाइन किया है कि जून में किया है कि जुलाई में किया है. It all depends. But don't worry, you will always get good quality with PACE. That you can be rest assured of. Anyone has any other doubt? Okay, I think ma'am, doubts are Preeti ma'am.
Yes, sir. And I can see there are a lot of questions, coming. And so, as I mentioned, we will, post the contact details of senior people who understand this program well and will be able to address all the questions of the parents. So tomorrow and day after, this is what parents can, discuss all the details and all the questions that at this point have not got answered, and then they can take a call. देखिए सीधी सी बात है, ये वाला कोर्स में ना अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर वो जज्बा है और आपको लगता है ये टीचर कर सकते हैं, तो उसमें मतलब कुछ इतना ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। कुछ सिंपल सी बात है कि भाई एक अच्छे ग्रुप में डालेंगे, अच्छे टीचर के साथ डालेंगे और एंजॉय कर करके बच्चा कर जाएगा, और बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, थोड़ा नहीं, दैट अमाउंट्स टू एटलीस्ट 30-40% ऑफ योर एक्स्ट्रा टाइम, व्हिच इज अ बिग एडवांटेज। बिग एडवांटेज नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट टाइम बचते, इन टर्म्स ऑफ बच्चे का मेंटल हेल्थ। बच्चा उस कोर्स में, क्लियर कोर्स में कभी भी प्रेशर फील नहीं करता, उसके पास वो टाइम हमेशा रहता है, एंजॉय करता है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग इन दिस प्रिपरेशन, अदरवाइज व्हिच कैन बिकम स्ट्रेसफुल फॉर सम स्टूडेंट्स। Anyone has any other doubt, you have my So, number, you can WhatsApp me. I would probably put it like this, that, students, parents, everybody focus for more than a year for boards, which is of course made for masses and has a different perspective. Whereas here we are talking about cracking the competitive exams at a national level. So the whole scale is very different. And that is why an early start definitely gives a lot of comfort and edge to the student. So I request parents to think from the child perspective and also not from the board perspective. I think that will give you an understanding about what Anshul sir and Richa ma'am wanted to share with all of you. हमारे जितने भी बच्चे क्लियर कोर्स में होते हैं, उनके क्लास 10th बोर्ड्स में भी मार्क्स किसी भी बच्चे के 95% के नीचे नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। That's true, sir. That's true. मतलब वो बच्चा हमारा टेस्ट अगर क्वालिफाई कर रहा तो डेफिनेटली उसने अच्छा परफॉर्म करेगा ही वो बोर्ड में। और बोर्ड्स, क्लास 10 बोर्ड्स, एंड वी डू गिव दैट ब्रेक, we do help you with some special lectures for boards also, जिसमें आपको पता लगेगा कैसे मार्क्स अच्छे ला सकते हैं बोर्ड्स में भी। We do help for that. For us, your board marks are also very important. Please understand that. We are not just aiming only for JEE. We want you to score good in your 10th boards also and 12th boards also. तो हम बोर्ड्स को हम लोग भी लाइटली नहीं लेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से लेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर पेस जूनियर कॉलेज के साथ इस तरह से प्लान किया गया है कि आपकी पूरी चीज की बागडोर पेस के हाथ में, and PACE will be able to lead you to the right destination. Okay, so thank you very much. I hope all of you had I had a nice time. All of you had सबको के डाउट जितने सॉल्व कर पाया मैं कर पाया। Thank you very much. चलिए, take care. Thank you. Bye. Thumbs up. Thank you, parents. We will be posting the portion as sir mentioned for the test, as well as the recording we will share with you. And if you have any queries, the contact numbers that we will be exchanging, you can feel free to reach out to them. All right. Thank you, everybody, for giving your time. Thank you. Thanks. Bye. Bye, sir.